Welcome to all of you स्टूडेंट्स। मैथ्स के लेक्चर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस हमने शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th आई एम गोइंग टू टेक। एज यू नो टिल 6th क्वेश्चन वी हैव solved questions to find mean where discrete data I have taken, and in that 6th question मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड दोनों मेथड आपके सामने डिस्कस किया है। सो नाउ इट इज़ अप टू यू दैट which method you need to apply, as well as it is even up to the instruction that in the instruction if they have said that you have to solve with the change of origin method, then only you supposed to do it, otherwise you go for direct method only, since calculator is available and direct calculation will save your time and information directly हमको total करके calculator में कैसे मिलता है, as we saw the memory option how to use, and in that way you need to go directly. So 7th question similar है 6th जैसा ही है, just I have taken to make you aware about again direct method से हम जाएंगे। and importantly क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लो, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाउस रेंट चार्ज्ड एंड द नंबर ऑफ हाउसेस विथ रेंट्स इन अ टाउन। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाउस रेंट। नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है डिस्क्रीट पैटर्न में दिया हुआ है, हाउस रेंट जो हमारे लिए वेरिएबल के तौर पे हाउस रेंट हमें कंसिडर करना है, एंड नंबर ऑफ हाउसेस आर टू बी कंसिडर एज अवर फ्रीक्वेंसीज। सो हाउस रेंट जो 110 रुपीज़ का है, ऐसे 25 हाउसेस हैं जो उस 110 रुपये को पे करते हैं, एंड सो ऑन। लास्टली 130 रुपीज़ ऑफ हाउस रेंट पेड बाय 2 हाउसेस। Likewise information is provided. Now we have to find arithmetic mean of the house rent. House rent, that is x, so we have to find x bar. So under solution, as you know, now you need to start with the required columns. First we are going to prepare our x column, that is house rent. Start preparing house rent. First column, it is in terms of rupees, which is my x variable. Number of houses, next column, number of houses, this is your frequency column. And lastly you have to prepare fx, need to multiply f and x. Now student, take down the information house rent, okay. So ready with this information 110, ये आपको सॉल्यूशन में प्रिपेयर करने का, 112, 113, 117, 120, 125, 128 and 130, and frequencies are 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 and 2. Now student, be ready with your calculator and you need to have fx, f into x, and its total is required. So student, मैंने आपको लास्ट लेक्चर ये डिस्कस किया था कि डायरेक्टली हमें fx का कॉलम कैसे टोटल करके मिलता है। दैट वे यू कैन अप्लाई our step by step method in the calculator by applying memory option, and again I would like to show
how we are going to deal with this particular memory option, which is very much important to have direct and fast calculation to save our time, and it is very important. You need to have some practice for it, otherwise वो फ्लुएंसी नहीं आती है. ज़रा आप वापस से मैं आपके सामने ये मेथड डिस्प्ले करूँगा, और चाहिए तो आप दोबारा देख लीजिए प्रॉपरली. आपको आता है तो आप आगे बढ़ेंगे. एंड विद दैट लेट मी शो अगेन द कैलकुलेशन what we did in the memory option. And चलिए, so very first 110 multiply by 25 take in the memory, so it is 2750. Take down 2750, then without pressing anything 112 into 17, again memory plus equal to 1904. Next 113 multiply by 13, memory plus equal to 1469. 1469. Next 117 into 15, memory plus equals to 1755. Then 120 multiply by 14, 1680. Then 125 multiply by 8, that is 1000. Then 128 multiply by 6, 768. And 130 multiply by 2, 260. ना सबको मेमोरी में डाला हुआ है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखो. अब जैसे ही मैं मेमोरी रिकॉल करता हूँ, मेमोरी MRC बटन दबाऊंगा, ये मुझे पूरा का पूरा टोटल दे देगा. सो MRC का बटन दबा रहा हूँ, देख लो. इट इज़ गोइंग टू गिव मी टोटल 11586. 11586. स्टूडेंट ध्यान रखो, आप लगता है तो इंडिविजुअल टोटल एक बार करके देखो. आप पहले वेरीफाई भी करो, लेकिन धीरे धीरे वो वेरीफाई करने वाली बात मत रखना दिमाग में, क्योंकि वो वापस आपका टाइम कंज्यूम करेगा. अभी फ़िलहाल क्योंकि अभी अपन प्रैक्टिस ले रहे हैं, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव फ्लुएंसी इन इट. और आपका आंसर परफेक्ट आना चाहिए, वो आप माइंड सेट डेवलप करेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ये मेथड मुझे अभी करने को हो गया है प्रॉपरली, मेरा आंसर परफेक्ट आता है. आप उस ऐसे ना कुछ क्या करने का, ऐसे कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे कोई भी रैंडमली आप ऐसे नंबर लिख के नोटबुक में आप खुद प्रैक्टिस करने का. समझ में आ रहा है? ताकि क्या होगा, आपका कैलकुलेटर का यूज़ जो है ना आपको फ्लुएंट हो जाएगा. एंड विद दैट सिग्मा fx इज़ रेडी. नाउ स्टूडेंट यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी का टोटल एज़ यूजुअल, जैसे नॉर्मली आप करते हो. इसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन डू इट. 25 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 plus 14 plus 8 plus 6 plus 2. This is 100. This is 100. Now this particular information is ready here. What is available with us? Capital N, that is sigma f, that is 100 is available, as well as sigma fx जो हमने ढूंढा है 11,586. So what we have to do now, apply the formula and find out x bar. So the final answer x bar, that is sigma fx. formula always लिखने का स्टूडेंट्स अपॉन कैपिटल N. डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं करने का. formula always you to mention and then you to solve further. 11,586 divided by 100, which is but obvious 115.86. 115.86. So this is what our particularly in terms of house rent, so it is in the rupees term. Hence मैं conclusion लिखता हूँ, hence
the average house rent, the average house rent, or they have mentioned like this, so you apply this. Hence arithmetic mean of house rent, that is arithmetic mean of house rent is rupees 115.86 टर्म्स ऑफ रुपीज़ मेंशन करने का सब यूनिट वगैरह, बिकॉज ये सब इम्पॉर्टेंट हमारा इंडिकेशन है. इफ़ दे हैव प्रोवाइडेड यूनिट्स प्रॉपरली यू हैव टू शो इन द आंसर ऑल्सो. सो विद दैट स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज डन. मेरा एक सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स, आपको जो प्रैक्टिस लेना है तो इसी क्वेश्चन को आप चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड से भी कीजिए. सो दिस मे बी योर सेल्फ प्रैक्टिस. नोट यहाँ पे लिख दो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 with change of origin method. It is for your practice and to know that answer is also going to be same with this method or maybe this direct method what you have performed. And now I am going to insist you to do it in direct method. If they have not given any information that in which method you have to do, then go for direct method only. It is perfectly convenient and which is time saving also. But for our practice and our proper नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको आना चाहिए करके हम इसको भी प्रैक्टिस में दूसरे मेथड से करने के लिए, इसलिए आपको मैंने ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया है. दिस यू सॉल्व अगेन विथ चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8th. okay, then let us begin question number 8. And with this, in this particular question, let me first read the question and the details, then I'll explain little bit. Now there is change in the category in this question. For the following distribution arithmetic mean was found to be 1.46. स्टूडेंट्स आपको 1.46 करके मीन का वैल्यू आपको अवेलेबल कर दिया हुआ है. मीन का वैल्यू क्या कर दिया है आपको? अवेलेबल. दूसरी बात, हमें बोला है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब यहाँ देख लो, नंबर ऑफ डेज जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है पहली बात, और जो एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो है एक्स, आपका वेरिएबल है. स्टूडेंट ये जो डेटा दिया है दिस इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दे हैव प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ डेज. जैसे कि देखो 46 डेज ऐसे हैं जिसमें एक भी एक्सीडेंट्स नहीं हुए, 0 एक्सीडेंट्स, और लास्ट में देखो 5 एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे 5 दिन हुए हैं. तो ये होता है, डिपेंड करेगा कि कितना एक्सीडेंट कभी कौन से दिन पे हुआ नहीं हुआ, और उसके आधार पे आपने को इस तरह से डेटा दिया हुआ है. अब आपको यहाँ जब देखो 2 एक्सीडेंट्स हुए थे, ऐसे कितने दिन है उसका फ्रीक्वेंसी डैश करके दिया हुआ है, इन द सेंस दैट यू हैव टू फाइंड दैट मिसिंग वैल्यू, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डेज, उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है. सो ये एक आपको इस तरह का पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, अच्छा, अब आपको यहाँ क्वेश्चन में 1.46 वो एक्स बार का वैल्यू अर्थमेटिक मीन, मतलब एक्स बार ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे दिया है. सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन x bar, that is that arithmetic mean 1.46 which is provided to you. And what we are going to do, this missing value, missing frequency, we are going to assume as k as a constant. So we are going to write a statement, let missing frequency be k. Okay,
तो ये हम टेम्पररी के अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, के का वैल्यू मिल जाएगा, वही हमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो मिल जानी है. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर a table as such. First information, number of accidents, number of accidents, that is x, and number of days, that is going to be your frequency, and last column as such, you know, you have to prepare fx, f into x. Now student, let me note down the values. X 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, and the number of days information 46 76 46 76. यहाँ हमने के अज्यूम किया है, सो राइट डाउन के 25 10 5. okay, so information is from 0 to 5, sorry, 0 1 2 3 4 and 5, and the frequencies are 46 76 k 25 10 5, 25 10 5. okay, and now let me find out fx, and in this f into x, first I am having 46 into 0, that is going to be 0, 76 into 1 76 itself, k into 2, that is going to be 2k, 25 into 3, that is going to be 75, 10 into 4, that is 40, and 5 into 5 25. now we have to do total of fx as well as total of frequency. total of frequency में पहले मैं आता हूँ, k एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि k कोई नंबर अभी तक मालूम नहीं है, तो k के साथ प्लस में क्या आएगा, तो कि जो बाकी के फ्रीक्वेंसीज है उसको टोटल करो, 46 प्लस 76 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, दिस इज गोइंग टू बी 162. 162 इसको एक ब्रैकेट में रखने का, क्योंकि एक पूरा हमारे पास k प्लस 162 का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना. fx का कॉलम में भी 2k को हम एज इट इज़ लिख देंगे, बिकॉज इट इज़ स्टिल अननोन. बाकी की वैल्यूज़ को हम टोटल करेंगे, जीरो को लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 76 से स्टार्ट करो, 76 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 25, एंड दैट इज गोइंग टू बी 216. सो प्लस 216 along with that plus 2k. so this is what up to this हमने जो कॉलम बनाया है, ऐसे भी हम डिस्क्रीट डेटा के कैलकुलेशन में, मीन के कैलकुलेशन में ऐसे टोटल वगैरह करते थे. एज सच सेम थिंग वी हैव डन. सो हियर व्हाट इज द कैपिटल N, that is sigma f, that is from table that we got k plus 162 in the bracket, and what is sigma fx, you got from table 2k प्लस 216, एंड एज सच एक्स बार जो है ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है ऊपर 1.46, यू कैन राइट अगेन 1.46. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द फॉर्मूला. सिंस व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन. नाउ सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स बार का भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, 1.46 इन द लेफ्ट हैंड साइड, सिग्मा एफ एक्स 2k प्लस 216 all upon capital N, that is sigma f, that is k plus 162. स्टूडेंट्स अब आप देखो, ये कैलकुलेशन को प्रॉपरली करना है, पे अटेंशन. जिसको आता है प्रॉपरली आगे कर लेंगे, मगर जिनको नहीं समझ रहा है मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो पूरा ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड. अब फिलहाल वो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में मतलब अपॉन में है, तो वहाँ जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में जाएगा. सो इट विल बी 1.46 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट k प्लस 162 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, तो के 2k
प्लस 216। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये है ना, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसका मतलब ये 1.46 को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके लेना है। तो जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर में आइए, पहले तो ये 1.46 इंटू पहला टर्म क्या है के, तो 1.46 इंटू के दैट इज 1.46 के प्लस 1.46 मल्टीप्लाई बाय 162, 1.46 multiplied by 162 which is going to be 236.52, okay, is equals to 2k प्लस 216। ब्रैकेट में ओपन कर देता हूँ। अब अभी हमको k की वैल्यू को एक साथ लेके आना है और उसके बाद एक दूसरी साइड में कॉन्स्टेंट्स को रखना है। अब मैं यहाँ 2k और यहाँ 1.46 k, मैं मेरे पास ये वैल्यू 2 ज़्यादा है ना, तो मैं ये 1.46 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करता हूँ। सो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 1.46k, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, 236.52 माइनस ये 216 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करूँगा। सो यहाँ पे प्लस में है, वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। सो 236.52 minus 216 which is going to be, कैलकुलेशन करना कैलकुलेटर में, 20.52 is equals to 2k minus 1.46k, in the sense 2 minus 1.46, 0.54 k के हिसाब से अपने जगह पे k रहेगा। और अब स्टूडेंट k की वैल्यू जो फाइंड करनी है, तो ये जो 0.54 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन रिलेशन अभी है फिलहाल k के साथ, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। सो 20.52 डिवाइडेड बाय 0.54 इज इक्वल्स टू k, एंड देयरफॉर अब आप इसको डिवाइड कर दें, 20.52 डिवाइडेड बाय 0.54 which is going to come 38, so therefore k is equals to 38। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन k की मिली है वही तो मिसिंग वैल्यू हमने अज्यूम की थी, जो है k मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वो मुझे मिल चुका है, जो आपको यहाँ k के जगह पे आंसर 38 मिल रहा है। मतलब 38 डेज ऐसे हुए हैं जिसमें 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो अभी हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, स्टेटमेंट में क्या मेंशन करके लिखेंगे, हैंस देखो ज़रा मिसिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, देर आर 2 एक्सीडेंट्स इन 38 डेज। और आप ऐसा भी स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो कि देर आर 38 डेज वेयर 2 एक्सीडेंट्स टुक प्लेस। हैंस आप लोग यहाँ पूरा स्टेटमेंट मेंशन करके लिखो, हैंस देर आर 38 days in which 2 accidents took place, that's it। सो स्टूडेंट ये है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसमें इसको, क्योंकि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढने का पहला क्वेश्चन हमने किया है और इस तरह से कि एज्यूम करके हमें इसको परफॉर्म करना है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, ध्यान दीजिए, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। द नंबर 3.2, 5.8, 7.9 and 4.5 have frequencies x
x प्लस 2, x माइनस 3 एंड x प्लस 6 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो नंबर पहले दिया है उसकी पहली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो गिननी है, दूसरे के साथ दूसरे को, तीसरे के साथ तीसरे के साथ तीसरे को, और चौथे के साथ चौथे को रिस्पेक्टिवली। मतलब ये नंबर दिए हुए वो x है मेरे लिए। सो इन द सॉल्यूशन आई विल बी प्रिपेयरिंग x एंड f कॉलम्स एज पर द गिवन। तो कि x की वैल्यू क्या क्या दी है, 3.2, 5.8, 7.9, 4.5 और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज में, तो कि पहला x का जो नंबर का है उसका फ्रीक्वेंसी x है, फिर उस दूसरे का है x प्लस 2, फिर x माइनस 3, फिर है x प्लस 6। दिस वे you have frequencies on the basis of given value of x। तो अब ये उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके आधार पे मुझे फाइंड आउट करना है x, लेकिन साथ में हमको अरिथमेटिक मीन का इन्फॉर्मेशन, साथ में हमको अरिथमेटिक मीन का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल किया है 4.876। 4.876। तो हम यहाँ पे गिवन नीचे टेबल में लिख देते हैं, that is x bar is 4.876। हाँ, अभी स्टूडेंट क्वेश्चन में ही दिया है ना जो वैल्यू, उसको पूरा ले लेने का, क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि पॉइंट के बाद सर 3 डिजिट दिए हुए हैं तो तीसरे को हम कंसिडर करके राउंड ऑफ कवर करके देखेंगे तो ये हो सकता है 4.88। बात सही है, मगर अभी फ़िलहाल क्वेश्चन में जो पॉइंट के बाद जितने नंबर दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे हम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ओके। तो अब हम fx के कॉलम पे आते हैं और उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट 3.2 इंटू एक्स, 3.2x। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वैल्यू जो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.8 इंटू एक्स प्लस 2, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू बिकम 5.8x प्लस 5.8 इंटू 2, 5.8 इंटू 2, दिस इज़ 11.6, 11.6। इसको भी ब्रैकेट में रखना, ये पूरा एक्सप्रेशन है ना। नेक्स्ट 7.9 इंटू एक्स माइनस 3, तो पहले तो आएगा 7.9x प्लस 7.9 इंटू 3, और बीच में माइनस है स्टूडेंट्स, तो माइनस आएगा 7.9 इंटू 3, 7.9 इंटू 3, दैट इज़ 23.7। उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। नेक्स्ट इज 4.5 इंटू एक्स प्लस 6, पहले आएगा 4.5x प्लस 4.5 इंटू 6, 27। ओके, अगेन कीप इन द ब्रैकेट। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा आपके साथ में शॉर्टकट वे से इसका कैलकुलेशन कैसे करना है कहाँ वो मैं बता देता हूँ। देखो, मुझे fx का टोटल चाहिए और f का भी टोटल चाहिए। तो f का फ्रीक्वेंसी का जब हम टोटल देखते हैं ना, तो उसमें आप देख लो x कितने बार आ रहा है, x x x x और सब प्लस x हैं, तो दिस इज़ 4x, दिस इज़ योर 4x। अब ज़रा शांति से सोचना, कांस्टेंट वैल्यू कौन सा है? कांस्टेंट मतलब वैल्यू नंबर के टर्म में है, +2
-3 + 6, ज़रा देख लीजिए कैलकुलेटर में, +2 -3 + 6, इट इज़ नेट आंसर कमिंग +5। समझे आप कैसे से डायरेक्ट कैसे किया हुआ है। नेगेटिव वैल्यू है वो माइनस होएगा, प्लस वैल्यू है वो ऐड होएगा। चलिए, और अब हम आते हैं एफ एक्स के टोटल में। तो एफ एक्स के टोटल में भी एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 3.2x + 5.8x + 7.9x + 4.5x। तो खाली वैल्यू को देखो, 3.2 + 5.8 + 7.9 + 4.5, this is going to be 21.4, but this is x value, so 21.4x, and now all constant values, that is plus 11.6, कैलकुलेटर में एंटर करते जाओ, 11.6 पॉजिटिव है, -23.7 क्योंकि वो माइनस में है, देख रहे हैं आप, और फिर है +27, सो द नेट आंसर इज कमिंग 14.9, प्लस में आ रहा है, सो +14.9, again keep in the bracket. So here from table I am getting capital N, that is sigma f, as 4x + 5, and important value sigma fx, that came 21.4x + 14.9. So ये हमको important conclusion मिला हुआ है. Now we are going to apply formula of x bar. फॉर्मूला लिखने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन. नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टेप में एक्स बार के जगह पे आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है 4.876 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू डाल दीजिए 21.4x + 14.9 होल अपॉन कैपिटल N, that is 4x + 5, बराबर है. अब देखो जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था, ये ब्रैकेट पूरा उधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी इन द मल्टीप्लिकेशन रिलेशन. सो 4.876 इंटू 4x + 5 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 21.4x + 14.9. and now I have to open this bracket, and 4.876 multiply by 4, so it is 19.504x. x के टर्म में ना 4, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, x एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में, प्लस 4.876 मल्टीप्लाई बाय 5, 4.876 multiplied by 5, that is coming 24.38 is equals to, right hand side as it is 21.4x plus 14.9. अब देखो x वाला टर्म ये हाईएस्ट वैल्यू है 21.4x एंड दिस इज 19.504x, उसको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. सो 21.4x एज इट इज़ राइट हैंड साइड में, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, सो इट बिकम्स 19.504x, और लेफ्ट हैंड साइड में 24.38 एज इट इज़ रहेगा, और राइट हैंड साइड से 14.9 यहाँ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स -14.9. सो 24.38 - 14.9, 9.48 is equals to 21.4 minus 19.504, 19.504, it is going to be 1.896x, and now getting x value 9.48 divided by 1.896, ये आपको डिवाइड करके लेना है. सो कैलकुलेटर से 9.48 डिवाइडेड बाय 1.896, this is exactly coming 5. So x is equals to, I got 5. स्टूडेंट्स, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है चल रहे हैं और ख़ास करके आपके कैलकुलेशन में प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि जब कोई कैलकुलेशन आगे पीछे कहाँ से भी आपका होना शुरू हो जाएगा ना, आगे के वैल्यूज़ फिर वो रॉन्ग आते चले जाएंगे और फाइनल आंसर आएगा नहीं। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग योर कैलकुलेशन मस्ट बी प्रॉपरली, जिसको हम बोलते हैं कि कैलकुलेटर में भी कभी कभी हम करते हैं, फिर भी हमारा से मिस्टेक ये भी होते हैं बच्चे लोगों का कि उन लोग गलत नंबर प्रेस कर दिए, गलत नंबर टाइप कर दिया, बटन बराबर दबा नहीं, ये बहुत सब एक्सक्यूजेस होते हैं। कैलकुलेटर प्रॉपरली आपको सिंपल कैलकुलेटर, जिसको हम बोलते हैं नॉट साइंटिफिक, हाँ नॉन साइंटिफिक, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, मतलब वो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आते हैं कुछ जो जो साइंस के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। यू हैव टू जस्ट यूज़ दिस सिंपल फंक्शनल्स कैलकुलेशंस, इसके लिए से जो सिंपल कैलकुलेटर्स आते हैं दैट इज़ यू हैव टू यूज़। बट इम्पॉर्टेंटली वो भी आपको प्रॉपरली लेना है, क्योंकि कुछ कैलकुलेटर्स में स्क्वायर रूट का बटन नहीं रहता है, कुछ कैलकुलेटर में मेमोरी का बटन नहीं रहता है, वो होता है ऐसे कैलकुलेटर स्पेसिफिक दूसरे पर्पस के लिए भी उन लोग निकालते हैं, तो बच्चे लोग क्या वो देखे बिना ले लेते हैं। सो आई इंसिस्ट टू हैव दोज buttons, those functions available in it. You first check and then purchase. स्क्वायर रूट का बटन होना ज़रूरी है, मेमोरी वाले ऑप्शंस होने ज़रूरी है। सो इट विल बी गिविंग यू क्विक इन्फॉर्मेशन, एंड जो भी है आपको मेमोरी का उपयोग आपने देख लिया है किस तरह से हम करते हैं, उसमें आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। सो दिस वे दिस क्वेश्चन इज़ डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन we are taking question number 10th, and now looking to this question you can observe that this marks and number of student का जो information दिया है this is provided in class interval pattern, मतलब this data is grouped data with class interval, yes or no? Marks is actually in terms of class interval, but this is our variable x, और जो number of students जो information है that is our frequency। अब स्टूडेंट इसका हमको मीन ढूंढना है, चलिए हम इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेते हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स। 80 स्टूडेंट्स मतलब कि ये आप फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट के टोटल लोगे ना तो ये 80 ही आएगा। अभी स्टूडेंट ये तो ठीक है, क्वेश्चन में उन्होंने इंस्ट्रक्शन में ऐसा 80 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ऐसा बोल दिया है, नहीं बोला रहता तो भी आप टोटल करके इसको 80 ये फाइंड आउट तो कर ही लेते थे। और दूसरी बात आपको अभी मीन का कैलकुलेशन करना है। अब स्टूडेंट मीन के लिए फॉर्मूला जो डिस्क्रीट डेटा में था वही फॉर्मूला ये ग्रुप डेटा के लिए अप्लाई होता है, लेकिन आपको पता दूं मैं मार्क्स जो क्लास सेंटर के टर्म में दिया है इसमें से हमको मिडेक्स ढूंढना पड़ेगा। याद आ रहा है हमने बेसिक लेक्चर में चर्चा की थी डिटेल में कि कैसे कैसे अलग अलग टाइप के डेटा के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत प्रोसेस हमारी चेंज करनी पड़ती है, जिसमें अभी की क्लास इंटरवल जो दिया है एक्स की वैल्यू है तो ये 0 to 10, 10 to 20 ये सब वैल्यू कोई एक्स की एक अकेली वैल्यू नहीं है। 0 to 10 बोलेगा तो क्लास इंटरवल है पूरे 0, 1, 2, 3 तो अप टू 9, तो भी कौन सी वैल्यू को एक्स कंसिडर करने का, एक्स के जगह पे किसको कंसिडर करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट हियर मिडल वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल दैट वी कॉल इट एज मिड एक्स और क्लास मार्क। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सो अंडर सॉल्यूशन we are going to prepare required column where first columns initially जो क्वेश्चन में दिए हैं वो as usual हम प्रिपेयर करते हैं, आपको मालूम होना है। तो both these columns as it is प्रिपेयर करिए। फर्स्ट इज फॉर मार्क्स, that is in terms of class interval which is our variable x, then number of students, this is frequency, then we have to prepare mid x, you may say class mark, दोनों शब्द अलग अलग भले हो लेकिन मीनिंग उसका सेम है, अल्टरनेट नाम है, लिख सकते हैं दिस। और ये मिड एक्स ही मेरे लिए x है और फिर हम ढूंढेंगे एफ एक्स जो हमारी लास्ट कॉलम होगी जो रिक्वायर्ड है फॉर्मूला में। सो स्टूडेंट्स लेट्स हैव
द क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 का गैप है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and lastly 40 to 50, 40 to 50. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो इंफॉर्मेशन है 12, 13, 21, 19, 15. And now you have to prepare the mid-x, that is 0 to 10. पहले क्लास इंटरवल का mid-x कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट्स आपको जो फॉर्मूला से मैं बताऊं, देखो तो कि आपका मिड एक्स का जो फॉर्मूला है ना, मैंने उसमें थियरी में भी डिस्कशन किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो अब आप ये करके देखेंगे या ओरली भी देख सकते हैं, तो ओरली जाइए. अच्छा, जैसे 0 to 10 का मिडल वैल्यू होता है 5, आपको चाहिए करके तो देख लो. 0 है लोअर लिमिट प्लस L2 अपर लिमिट है 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10/2 आया कि नहीं 5. सो दिस 5 इज गोइंग टू बी योर मिड एक्स एज यू कैन ओरली ऑल्सो एस्टिमेट. सो 10 to 20 का मिड एक्स क्या आ जाएगा? 15, देन 25, देन 35, and then 45. That's it. And with this, now you need to prepare last column fx, और ये जो fx का कॉलम आपका बनेगा, चाहिए तो अब आप मेमोरी का इस्तेमाल करके तुरंत इसके अंदर टोटल की व्यवस्था कर लीजिए. f इंटू एक्स, 12 इंटू 5 मेमोरी, 13 into 15 memory, 21 into 25 memory, 19 into 35 memory, 15 into 45 memory, and then this memory recall button you to apply, that is going to be 2120. स्टूडेंट आपका भी आया होगा. मुझे बीच बीच में ये बोलना चाहिए था कि मेरे को ये नंबर्स आंसर्स उसके लिखने हैं. 12, जैसे 12 इंटू 5 मेमोरी में डाला तो पहले 60 जो दिख रहा है डिस्प्ले पे लिखते जाओ. फिर 13 इंटू 15 के हिसाब से जो मेमोरी में डाला 195 डिस्प्ले पे जो है वो यहाँ लिखते जाओ, बिकॉज आई नीड टू कंप्लीट दिस. इनकम्प्लीट रख के डायरेक्ट टोटल लेके आगे नहीं बढ़ना, ये सॉल्यूशन में दिखना चाहिए. ये डायरेक्ट हो गया ऐसे तो बोलने के लिए, लेकिन स्टेप्स के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स. टेबल कंप्लीट करके दिखाना है, उसका भी एक वेटेज है मार्क्स का. देन द 21 मल्टीप्लाई बाय 25, 525. देन 19 मल्टीप्लाई बाय 35, 665. एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 45, 675. And after clicking on memory recall, let's check properly ये हमारा जो total आया है whether it is going to be a perfect one. Again 12 into 5, 13 into 15, 21 into 25, 19 into 35, 15 into 45, memory recall 2120. Perfect. So now even I need total of frequency, as you can understand in this required in the formula. अच्छा, अब स्टूडेंट देखो अननेसेसरी ये मिड एक्स कॉलम जो एक्स का कॉलम हमने बनाया हुआ है उसका टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको फॉर्मूला में. बहुत से स्टूडेंट्स कॉलम है तो चलो टोटल कर देते हैं. अरे बाबा मगर ये जरा देखो तो सही बाबा कि भाई कॉलम की जो हमारे टोटल की जो है रिक्वायरमेंट हमारे पास फॉर्मूला के अंदर है क्या, काई को टाइम पास करके उसका टोटल करने का अपने को करने का. तो फ्रीक्वेंसी की टोटल की मेरे को इसलिए भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि देर आर टोटल 80 स्टूडेंट्स. देखो ये सब पढ़ने का, कभी ऐसा जानकारी डायरेक्ट दे देते ना तो फिर टोटल करके लेने की जो ज़रूरत नहीं. 80 नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन लिख के दिया हुआ है, करोगे तो भी 80 आना ही है, बट वो टाइम वेस्ट वाली बात होती है. सो फ्रॉम दिस टेबल वी हैव कैपिटल N, that is 80
and sigma fx available 2120. नाउ x बार ढूंढना है, फॉर्मूला में अप्लाई करो, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n 2120 डिवाइड बाय 80. चल भाई 2120 डिस्प्ले पर रेडी है, डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 26.5. 26.5 जो x बार का आंसर आया, दैट इज रिगार्डिंग मार्क्स. यूनिट लिखो, मार्क्स, ख़त्म हो गया. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, योर कैलकुलेशन प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गिवन, कि किस पैटर्न का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, किस तरह से हमें प्रोसेस करनी है उसको हमें सॉल्व करने के लिए. These are some important aspects which you need to take care about it. So this is what first question we did about grouped data with class interval. Now next again we have same type of question number 11, which you can observe class interval के basis पे available है. You can notice this, class intervals are provided. Let me read this question. चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. Question number 11. The following table gives the distribution of daily wages of 100 employees of a company. Find the average wages. हमें यहाँ information wages के लिए दिया है और हमें average wages ढूंढना है. This wages represents variable x and it is in terms of class interval which is 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65. अच्छा, और एक बात मैं बता दूँ, हमने डेटा के बारे में डिस्कशन लिया था आगे के लेक्चर्स में, उसमें यहाँ क्लास इंटरवल का भी मैंने दो अलग टाइप बताया था, एक तो कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसा था. तो 0 to 10 नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है 10 से ही, तो ये कंटिन्यूस हो गया. यहाँ पे भी 50 to 55 फिर स्टार्ट हो रहा है 55 to 60, तो 55 पे ही स्टार्ट हुआ, तो वापस से ये जो हो गया, दिस इज आवर कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल. तो ठीक है, ये खाली मैंने आपसे ऑब्जर्व करके लिया हुआ है जिससे कि आपको मालूम पड़े कि डिसकंटिन्यूस टाइप का जो कैटेगरी होगा क्लास इंटरवल का, तभी क्या करने का है, दैट आई विल डिस्कस. अभी फ़िलहाल ये कंटिन्यूस नेचर के क्लास इंटरवल है, एंड दिस कंटिन्यूस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज़ वेरी मच डायरेक्टली टू बी डन. उसमें कुछ चेंजेस करना नहीं है, वेरी मच हमारे लिए इजीली हो जाता है. चलिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसीज. चलो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन में. फर्स्ट हम जो है फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, डेली वेजेस जो दिया हुआ है, डेली वेजेस इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, दैट इज़ आवर क्लास इंटरवल विच इज़ x, our variable. Number of employees, this is our frequency. Then we need mid-x, and then we are going to find this mid-x is only our x, or then we have to find fx. So first the class intervals are 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 8, 70 to 80. The next one is 80 to 100. अच्छा स्टूडेंट, एक और बात मैं डिस्कस कर देता हूँ. यहाँ जो है वो क्लास इंटरवल आपके सामने रिप्रेजेंट जो हुए हैं क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इट इज़ नॉट यूनिक. आई मीन टू से 50 to 55 5 का गैप हुआ, 55 to 60 वापस 5 का गैप हुआ, 60 to 65 वापस 5 का गैप हुआ, 65 to 70 वापस 5 का गैप हुआ, बट 70 to 80 10 का गैप हो गया, एंड देन 80 to 100 20 का गैप हो गया. सो द गैप दैट द क्लास विड्थ इज़ नॉट uniquely given in all these class intervals. Initially they are same of 5 units gap, but then the last two class intervals have difference in it. So ये भी आपको नया आपको जानकारी मिल रहा है कि they may give this type of disproportional class interval. Fine.
हमें करने का प्रोसेस वही रखना है। फ्रीक्वेंसीज क्या दी हुई है, 10, 22, 30, 20, 12, 6। देन मिड एक्स हमको ढूंढना है, दैट मिड एक्स। नाउ आपको जो 50 और 55 का बीच का मालूम नहीं पड़ता है तो कैलसी में डायरेक्टली करो 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। इनमें क्या किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 52.5 लिखते जाइए। देन 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 57.5। ओरली आ सकता है आपसे भी, आगे बाकी कैलकुलेटर का यूज़ करना ज़रूरी नहीं रहेगा, जो आप बराबर समझ सकते हैं। तो देन दिस बिकम 62.5 है ना। 62 65 का मिडल क्या हो जाएगा, 62.5। देन दिस बिकम 67.5। 70 to 80 का मिडल आएगा 75। एंड देन 80 to 100 का मिड एक्स आएगा 90। 90 will be the mid x. So this way we have completed mid x column, and now we need to have calculation about fx. तो x मिड x मतलब जो है रेडी है मेरे लिए, और अब मैं x उसका वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मैं जाना चाहूँगा मेमोरी के ऑप्शन से 52.5 मल्टीप्लाई बाई 10 मेमोरी। तो आंसर जो आया है वो मेरे सामने, वो मेरे को लिखते जाना है 525 525। then 22 multiplied by 57.5, that is going to be 1265 1265। then 30 multiplied by 62.5, that is 1875 1875। then 20 multiplied by 67.5, 1350 1350। then 12 into 75, 900। and then 6 into 90, that is 540। सबको मेमोरी में डालते गए हो भाई साहब, मेमोरी रिकॉल करिएगा, मेमोरी रिकॉल करिएगा। 6455 6455। if you want you can check। 6455। तो आपके तसल्ली के लिए आप कर रहे हो, बाकी मुझे जो आप देखो एक लेवल के बाद प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट लेवल आप आ जाता है आप में ना, तो डायरेक्ट ये जो मेमोरी में आपने रिमेंबर रिकॉल करके जो लास्ट का फाइनल टोटल ढूंढा, वो आपको मांगता लगना ही मांगता है कि मेरा परफेक्ट किया हुआ रहेगा और मेरा आंसर सही है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, देखो स्टार्टिंग में सबको कोई स्टूडेंट को होता ही है, वो मेमोरी में डालने का बटन दबाने का भूल जाते हैं, या उसमें लास्ट के वैल्यू में ज़्यादा होता ही है। जैसे मेरा लास्ट वाला 90 इंटू 6 का जो मल्टीप्लिकेशन आया, उसका आंसर मैंने मेमोरी में डालना को रह गया। अभी ऐसा है ना, बहुत से कैलकुलेटर में ये जो बटन हमने दिखाया m प्लस इज इक्वल्स टू, इस बटन में दो चीज़ एक साथ हो रही है। क्या दो चीज़ एक साथ हो रही है, तो इक्वल टू मेरे को आंसर भी दे रहा है और वो प्लस करने के लिए मेमोरी में भी डाल रहा है। कुछ कैलकुलेटर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, बटन जो है वो m प्लस का ही होता है, सिर्फ किसका होता है, सिर्फ m प्लस का। इस m प्लस के बटन में मतलब क्या होता है कि आप मेमोरी में डालोगे उसके लिए बटन है, मगर आंसर जो आपको लाना है उसको, आंसर को आपको लाने के लिए इज इक्वल टू का बटन अलग से दबाना पड़ेगा। अब ये वाले कैलसिस में क्या होता है कैलकुलेटर्स में कि मेमोरी में डालने के लिए m प्लस का अलग से बटन है, इज इक्वल्स टू आंसर लाने के लिए इक्वल टू को आपको अलग से पहले बटन दबाना पड़ेगा, फिर मेमोरी में डालने के लिए m प्लस का बटन दबाना पड़ता है। ऊपर के केस में ये जिसके कैलकुलेटर में साथ में बटन, ये ऑप्शंस हैं जिसमें ये बटन है, तो इसमें होता क्या है फ़ायदा कि मेमोरी में भी प्लस होने के साथ साथ इक्वल टू का आंसर भी मेरे सामने वो प्रेजेंट कर देता है। मतलब इज इक्वल्स टू का आंसर आया हमारे डिस्प्ले पे, साथ में वो प्लस होके मेमोरी में भी चला गया। मतलब ओनली वन टाइम यू हैव टू प्रेस दैट बटन विच डज बोथ दिस वर्क फॉर अस। मतलब दो बार हमारे को काम करने की ज़रूरत नहीं कि एक बार वो इज इक्वल टू के हिसाब से पहले आंसर ढूंढो,
फिर उसको मेमोरी में डालने के लिए M+ का बटन दबाओ, वो अलग अलग करना पड़ता है। जिनके कैलसी में इस तरह से बटन है, देखो वेराइटीज़ कैलसीज होते हैं कैलकुलेटर में, ऑप्शंस के मैं बातें कर रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स को क्या वो भूल गलती से पहले से मालूम नहीं रहता है, गलती से वो कैलसी ले लेते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। बाकी ये ऑप्शन ऐसा अलग होने, बटन अलग होने पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास मेमोरी का ऑप्शन है सही, लेकिन आपको = का पहले दबाना पड़ेगा, फिर मेमोरी प्लस में बाद में आपको डालने के लिए अलग से दबाना पड़ेगा। तो ये होता ये है कि वो स्टूडेंट लास्ट का वैल्यू को मेमोरी में डालने का भूल जाता है और डायरेक्ट मेमोरी रिकॉल कर डालता है। तो होगा क्या मिस्टेक कि वो वैल्यू मेमोरी में नहीं गई है तो टोटल में नहीं आएगी, और जो आएगा टोटल वो लेके आगे बढ़ जाता है कि वो सही है करके। तो ये सब चीज़ है जो छोटी मोटी बात आपको ध्यान में रखनी ना। फ्रीक्वेंसीज की टोटल हमको क्या मिलेगी, 10 + 22 + 30 + 20 + 12 + 6 दैट इज़ 100। और ऊपर ऐसे भी हमको 100 एम्प्लॉय बोला है स्टूडेंट, ज़रा पढ़ने का है, बराबर ध्यान लेने का है, तो 100 अवेलेबल है। सो नाउ जस्ट नीड टू अप्लाई इन द फॉर्मूला फॉर x⁻। नाउ हाँ पहले लिखना है तो लिखो हियर, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कैपिटल N = 100, और दूसरा आपका जो सिग्मा fx का जो टोटल आया हुआ है 6455। सो x⁻ = सिग्मा fx अपॉन कैपिटल N, दैट इज 6455 अपॉन 100। डायरेक्टली होता है स्टूडेंट, कैलकुलेटर का ज़रूरत नहीं है, पॉइंट 2 डिजिट के पहले लगा दो क्योंकि नीचे 2 0 है। दिस इज गोइंग टू बी 64.55 एंड दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेजेस इन रुपीज़। सो रुपीज़ 64.55 इज द arithmetic mean of the wages, arithmetic mean of the wages। स्टूडेंट्स ये इस तरह से हम आज ये जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, इसमें हमने ग्रुप्ड डेटा का भी अभी यहाँ क्वेश्चन हमने देख लिया। तो इसके साथ हम आज का ये सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग घर पे इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लोगे और ख़ास तौर पे इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सो दैट योर कैलकुलेशंस, योर कंसेप्ट्स, योर वर्क ऑन द कैलकुलेटर ऑल्सो विल बी फ्लुएंट एंड आप खुद कर सको उस लेवल तक। आई होप आपको सब इंस्ट्रक्शन मैंने जो दिए है उसके अंदर आप बराबर से फॉलो करके ले सकते हो। सो विद दैट आई कंक्लूड टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, और फिर आगे के और भी जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।